Hello students, welcome to online study, English medium, subject English, standard 8th, chapter 10, The Gradstone Phase 2, session 1. Dear students, in your ago session, you already studied about Gradstone Phase part 1, that you heard about the Gradstone Phase was the work of nature, and it was formed on the side of mountain by some rocks. So whenever you seen from a distance, they looked like a human face and alive. So if you go near, the face turned into a heap of rocks. So the people believed that the valley owed much of its fertility due to that face. So what happened? One day, one mother and a little child, Ernest, sat at the door of their cottage, and he wished that the Gladstone face could speak. So the mother hoped to see the man sometime with a similar face. She told a curious story she herself had heard in her childhood, a great man bearing that the same face would be born some day, and that was a prophecy. So what happened? Ernest could never forget that story, and he was very helpful to his mother. So, as soon as Ernest being elder, and he is being like a gentle, quiet young man. So the stone face became his teacher, and the child used to watch it for hours. So what happened? Once one rumor spread that the great man who was bear a resemblance to the Gladstone face had appeared at last. So one rich merchant whose name is Gathergold, who came in the village, and people welcomed him as the great man because he resembled the Gladstone face. So, but Ernest didn't agree with these people. So what happened? Years went on, and Ernest grew up to be a young man. And he was also hardworking and kind man. So after a few days later, or a few months later, Mr. Gathergold died as a poor man and was buried. So people also agreed with the Ernest that there was no likeness between the merchant and majestic face upon the mountain. So it so happened that another son of the valley returned to his native valley. He had become a famous commander, and people believed blindly and accepted him as a Gladstone face. But Ernest couldn't see any similarity between them. Now let's go towards the Gladstone phase 2. Many years passed. Ernest was now man of middle age to his neighbors, who never suspected that he was anything more than an ordinary and familiar face. He was only a humble and hardworking, though thoughtful person. But what about the old prophecy? Was it ever fulfilled? काफ़ी सारे साल है वो बीत जाते हैं। अर्नेस्ट है वो अभी एक मिडल एज का मैन बन जाता है, बट कभी भी उसके नेबर्स ने ये डाउट नहीं किया था कि वो एक कॉमन मैन या तो एक फैमिलियर फेस से कुछ अलग है या तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। वो एक बहुत ही प्रामाणिक एंड हार्डवर्किंग लड़का था और बहुत ही गहरी सोच में, मतलब थॉटफुल पर्सन था, विचारशील पर्सन था। बट जो भविष्यवाणी की गई थी, ओल्ड प्रोफेसी की गई थी, उसके बारे में क्या वो कभी भी फुलफिल होगी? लेट्स रीड एंड फाइंड आउट. The years hurried on and brought white hairs upon the head of Ernest and made wrinkles across the forehead and furrows in his cheeks. He was an old man, but not in vain had he grown old. More numerous than the white hairs on his head were the wise thoughts in his mind, and Ernest had ceased to be obscure. Unsought for, undesired had come the fame which so many seek. He had become famous beyond the limits of the valley.
व्हाट हैवन कि काफ़ी सारे साल है वो मतलब बहुत जल्दी से गुजर रहे थे, निकल रहे थे, और अर्नेस्ट का जो हेड था, सर था, वो पूरा वाइट हो गया था, यानी कि वाइट हेयर्स हो गए थे अर्नेस्ट के। उसके फेस पे ब्रिंकल्स होने लगे थे, यानी कि करचली होने लगी थी उसके फोरहेड पे, एंड इवन इन फ्यूरोज इन हिज चेक्स, यानी कि उसके गाल पे भी काफ़ी सारी गहरी लकीरें दिखने लगी थी। वो एक ओल्ड मैन था, बट उसका जो थॉट था वो भले उम्र वाइज बढ़ता जा रहा था, बट उसके जो थॉट्स थे वो बहुत ही एक्टिव थे, एंड वो एक एक्टिव मैन था। मोर न्यूमरस दैन द वाइट हेयर्स ऑन हिज हेड, मतलब उसके सर पे जितने वाइट बाल थे उसके कई गुना ज़्यादा, मतलब वो इंटेलेक्चुअल थिंकिंग वाला था और बहुत ही वाइज, यानी कि अच्छा विचारशील पर्सन था। अर्नेस्ट है वो माइंड से बहुत एक्टिव था, मेंटली बहुत ही इंटेलिजेंट पर्सन था, और वो बूढ़ा था, बट एज से और हेयर से बूढ़ा था, बट उसका थिंकिंग तो अभी भी एज इट इज़ यंग ही था। और बहुत सारे लोग मतलब जो फेम यानी कि प्रसिद्धि चाहते हैं, डिमांड करते हैं, चाहते हैं, तो जो लोग मतलब इतनी बड़ी सिद्धि चाहते हैं या तो अपनी फेमसनेस चाहते हैं, प्रख्यात होना चाहते हैं, वो जितना मतलब मांगे बिना ना मांगे बिना जितना मिलता है उतना फेम एंड इतनी पॉपुलैरिटी अर्नेस्ट को मिलती है। वो पूरी वैली में फेमस बन जाता है, बहुत ही प्रख्यात बन जाता है, यानी कि बिन मांगे ही उसको इतनी सिद्धि एंड फेमसनेस मिलती है। College professors and even the active men of cities came from far to see and converse with Ernest, and he received them with gentle sincerity and spoke freely with them of whatever came uppermost or lay deepest in his heart or their own. While they talked together, his face would brighten unaware and shine upon them as with a mild evening light. काफ़ी सारे कॉलेज प्रोफेसर, इवन सिटी के बहुत सारे ऐसे एक्टिव लोग थे कि जो बहुत दूर दूर से अर्नेस्ट से बात करने के लिए आते थे। एंड अर्नेस्ट है वो भी बहुत ही जेंटल और सिंसियरिटी से, यानी कि बहुत ही एक अच्छा इंसान बन के, एक वाइज मैन बन के, और बड़ी मैनर्स के साथ, सिंसियरिटी के साथ में उन लोगों के साथ बातें करता था। जो भी उसको सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट लगता था उसके ऊपर, या तो अपनी हार्ट, अपने दिल के अंदर कोई गहरी बात छुपी हुई है तो उसके रिलेटेड, या तो वो लोग अगर कुछ बातें करना चाहते हैं तो उसके रिगार्डिंग वो ऑलवेज बातें करता था। उसका फेस है वो बहुत ही चमक रहा था, यानी कि उसके फेस पे एक अलग सी चमक नज़र आ रही थी, एंड उसकी फेस पे मतलब एक अलग सी चमक की जो लकीरें होती है वो नज़र आ रही थी, जैसे कि माइल्ड इवनिंग का टाइम होता था और चमक होती थी, जो जो सूरज ढलने के टाइम पे जो रोशनी होती है उस तरह की रोशनी उसके चेहरे पे नज़र आ रही थी। While Ernest had been growing old, God had granted a new poet to this earth. He too was a native of the valley, but had spent the greater part of his life in distant cities, pouring out of his sweet music everywhere. Neither was the Gladstone Fest forgotten, for the poet had celebrated it in a poem. The songs of this poet found their way to Ernest. He read them after his customary toil, seated on the bench before his cottage door. As he read, he lifted his eyes to the mountain. जैसे जैसे अर्नेस्ट है वो बड़ा होता जा रहा था, अपनी उम्र बढ़ रही थी, उसके साथ साथ अर्नेस्ट के ओल्ड होने के साथ साथ भगवान ने एक दूसरा पोएट अर्थ पे भेज दिया था, वैली के अंदर एक दूसरा पोएट भेज दिया था। वो वहाँ का ही रहने वाला था, नेटिव है वो, उसका वतन है वो वैली में ही था, यानी कि वहाँ से ही वो बिलोंग कर रहा था, एंड उसने अपनी लाइफ का काफ़ी सारा हिस्सा है वो दूर डिस्टेंट सिटी में बिताया था। वो अपना म्यूज़िक है वो हर जगह पे मतलब ऐसे स्प्रेड करता रहता था, यानी कि जो पोइट यहाँ पे आया था वैली में, वो अपना स्वीट म्यूज़िक है वो हर जगह पे बजाता रहता था। ना ही वो आज तक ग्रेडस्टोन फेस को भूल पाया था, और ये जो पोएट है उसने अपनी पोएम में भी ये ग्रेडस्टोन फेस का काफ़ी बार जिक्र किया हुआ है। ये पोएट के जो भी सॉन्ग आप सुनते हो तो ऐसा लगता है जैसे वो पोएम है वो ही पोएट है उसको ग्रेडस्टोन फेस तक, यानी कि अर्नेस्ट तक जोड़ के लाई थी, यानी कि पोएट की ये जो पोएम है, ये जो सॉन्ग्स है, उसने ही अर्नेस्ट तक आने का रास्ता बना दिया था, यानी कि उसने ही पोएट को अर्नेस्ट तक पहुंचाया था।
वो ये पोएम को रीड करता था। अपनी ये जो भी कस्टमरी टॉयल यानी कि अपना जो भी हाउस होल्ड वर्क रहता था, जो भी काम होता था, वो ख़त्म होने के बाद में जो भी मतलब टाइम बचता था उसमें वो मेहनत करने के बाद में अपना कस्टमरी टॉयल यानी कि अपना मेहनत का काम ख़त्म करके वो क्या करता था कि वहाँ पे कॉटेज डोर के सामने जो बेंच थी वहाँ पे वो बैठता था और ये सारी पोएम से वो रीड करता था। As he read, he lifted his eyes to the mountain। और जैसे ही पोएम रीड करने के बाद में वो तुरंत ही माउंटेन के सामने देख के ऑब्जर्व करता रहता था, देखता रहता था। ओ ग्रेटस्टोन फेस, ही सेड, इज नॉट दिस मैन वर्दी टू बी योर लाइकनेस। मतलब वो बाद में ग्रेटस्टोन फेस को ये क्वेश्चन पूछता है कि क्या ये जो है ये मैन है उसमें तुम्हारे जैसी सिमिलैरिटी नहीं है क्या? मतलब ये तुम्हारे जैसे सिमिलैरिटी वाला लाइकनेस वाला ही पर्सन नहीं है क्या? इतना कैपेबल नहीं है वो? और ग्रेटस्टोन फेस ये पर्सन है उसमें तुम्हारे जैसी लाइकनेस और सिमिलैरिटी क्या नहीं है? The face seemed to smile but didn't answer. Now it happened that the poet, though he lived so far away, had not only heard of Ernest but had thought much about his character and wished to meet this man whose wisdom walked hand in hand with the noble simplicity of his life. One summer day, therefore, he arrived at Ernest's door, where he found the good old man holding a book in his hand, which he read, and then, with a finger between the leaves, looked lovingly at the Gladstone face. वो ग्रेटस्टोन फेस को जैसे ही ये क्वेश्चन पूछता है तो जैसे कि ग्रेटस्टोन फेस है वो उसके सामने देख के स्माइल कर रहा था, पर कोई भी तरह का रिप्लाई नहीं करता है, आंसर नहीं देता है, ऐसा अर्नेस्ट को लगता है। अभी होता है ऐसा कि पोएट है वो मतलब यहाँ से वैली से बहुत दूर रहते थे, बट इतना दूर रह के भी मतलब उसने अर्नेस्ट के बारे में बहुत कुछ सुना था एंड वो सोच रहे थे कि अर्नेस्ट है वो एक अलग कैरेक्टर है, एक अलग इंसान है, एक अलग व्यक्ति है एंड वो ये मैन को मिलना चाहते थे कि जिसका जो अच्छापन है उसका मतलब जो बातें हैं वो हर जगह पे इतनी फैली हुई है कि मतलब ऐसे लग रहा है कि जैसे ये नोबल मैन है वो हर जगह पे हर एक पर्सन की लाइफ में वो इफ़ेक्ट कर रहा है। एक बार समर का दिन था और ऐसा होता है कि वो पोएट होते हैं वो अर्नेस्ट के डोर पे आते हैं और वहाँ पे वो देखते हैं कि एक गुड ओल्ड मैन है वो अपने हाथ में बुक पकड़ के वहाँ पे बैठा हुआ है। वो बैठ के वहाँ पे ये बुक को रीड कर रहा था और वो जो बुक के पेजेस जो थे उसके ऊपर अपनी फिंगर से उसको ऐसे घुमा रहा था एंड वो बुक के पेजेस के ऊपर पोएम की लिखी हुई जो बुक थी, पोएट की लिखी हुई जो बुक्स थी पोएम्स की, उसको अर्नेस्ट रीड कर रहा था और उसके पत्ते पे अपनी उंगलियां घुमा रहा था और उंगलियां घुमाते घुमाते वो ग्रेटस्टोन फेस के सामने देख रहा था। गुड इवनिंग सेड द पोएट, कैन यू गिव अ ट्रैवलर a night shelter? Greatly answered Ernest, and then he added, smiling, I think I never saw the Gladstone face look so hospitably at a stranger. The poet sat down beside him, and he and Ernest talked together. Never before had the poet talked with a man like Ernest, so wise and gentle and kind. Ernest, on the other hand, was moved by the living images flung out of the poet's mind. पोइट क्या कहते हैं, गुड इवनिंग, क्या आप मुझे एक ट्रैवलर को यानी कि एक जो राहदारी है उसको रात भर रुकने के लिए आप मुझे यहाँ पे घर का मतलब सहारा दोगे क्या? अर्नेस्ट है वो बड़ी खुशी के साथ वो रिप्लाई करता है, कहाँ बोलता है और वो स्माइल के साथ क्या बोलता है कि आज तक आई थिंक मैंने ऐसा कोई भी ऐसे स्ट्रेंजर को ग्रेटस्टोन फेस को इतना हॉस्पिटेबली देखते हुए नहीं देखा है। पोएट है वो अर्नेस्ट के बाजू में बैठ जाते हैं, वो एंड अर्नेस्ट दोनों मिलके एक दूसरे के साथ बातें करते हैं और आज तक पोएट ने अर्नेस्ट जैसा एकदम वाइज इट्स मीन्स भला और जेंटल मतलब बहुत ही अच्छा और दयालु इंसान आज तक उसने कभी नहीं देखा था। दूसरी साइड पे अर्नेस्ट भी ये सोचता है कि जिस तरह से पोएट का थॉट के थ्रू जो इमेजेस वो रिप्रेजेंट कर रहे थे उसकी वजह से अर्नेस्ट को भी बहुत अच्छा फील होता है कि ये कितना अच्छा इंसान है। As Ernest listened to the poet, he imagined that the Gladstone face was bending forward to listen too.
He gazed into the poet's eyes. Who are you, my gifted guest? He asked. The poet laid his finger on the book that Ernest had been reading. जैसे ही अर्नेस्ट है वो पोएट की बात सुनता है, बाद में वो इमेजिन करने लगता है जिस तरह से, मतलब अर्नेस्ट है वो पोएट को सुन रहा था, उससे वो इमेजिन कर रहा था कि ग्रेडस्टोन फेस है वो भी बेंड होके हमारी बातें सुनने की कोशिश कर रहा है। एंड वो पोएट की आंखों में देखता है और पूछता है कि आप कौन हो मेरे गिफ्टेड गॉड, आप कौन हो माय गिफ्टेड गेस्ट, यानी कि भगवान के दिए हुए गिफ्टेड गेस्ट आप कौन हो। अर्नेस्ट है वो पोएट को क्वेश्चन पूछता है। पोएट है वो अपनी उंगलियां को बुक के ऊपर घुमाते हैं कि जिसको अर्नेस्ट है वो रीड कर रहा था। यू हैव रीड दिस पोएम सेड ही, यू नो मी देन फोर आई wrote दैम। तुम जो पोएम को रीड कर रहे हो ना, वो क्या बताते हैं कि तुम जो पोएम को रीड कर रहे हो ना, तो तुम मुझे जानते ही होगे कि जो पोएम तुम रीड कर रहे हो वो मैंने लिखी है। Again and again Ernest examined the poet's feature. He turned toward the Gladstone face, then back. He shook his head and sighed. Again and again Ernest है वो क्या करता है कि पोएट के ये जो फीचर्स थे उसको चेक करने की कोशिश करता है, और अर्नेस्ट है वो ग्रेडस्टोन फेस के सामने घूमता है, देखता है, वापस से बैक साइड पे देखता है, अपना सर है वो हिलाता है और वो बहुत ही उदास हो जाता है। Why are you sad? Inquired the poet. पोएट उसको पूछते हैं कि तुम इतने उदास क्यों हो। So dear students, here the explanation of the part 1 is over. Thank you.